بارشیں آ رہی ہیں، دھواں دھار برسات ہوگی، سیلاب آ رہا ہے، پھر بارشیں ہوتی ہیں، سیلاب آتا ہے، تباہی لاتا ہے، لیکن یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ہر سال ہی یہ بات ہوتی ہے، ہر سال ہی اموات ہوتی ہیں اور ہمیشہ تباہی کی نئی داستانیں رقم ہوتی ہیں، لیکن حل کوئی نہیں۔ پیشگی اقدامات فقط الرٹ جاری ہونے تک محدود ہیں۔ آخر کب ہم سیکھیں گے؟ کب جانی اور مالی نقصان سے بچنے کا بندوبست کریں گے؟ بڑی بڑی کانفرنسز ہو جاتی ہیں ناظرین، کلائمیٹ چینج سے نمٹنے کے لیے ڈالر بھی کا حل نکل سکے، لیکن وہ نہیں ہو پا رہا ہے۔ دنیا کو معلوم ہے کہ اور یہ ہم خود بھی کہہ رہے ہیں کہ موسمیاتی تبدیلی تباہ کن روپ دھارتی ہے، لیکن خاطر خواہ سیناریو میں اقدامات انتظامات کہیں نظر نہیں آ رہے۔ آج اسی اہم موضوع پر ہم بات کریں گے، لیکن پہلے بات کر لیتے ہیں تازہ ترین صورتحال کی۔ اور ہمیشہ کی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ مانسون کی جب بھی بارشیں آتی ہے، سیلابی کیفیت پورے ملک میں ابھرتی ہوئی نظر آتی ہے، جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اربن فلڈنگ کا فلیش فلڈنگ کا جو خطرہ ہے وہ منڈلاتا رہتا ہے۔ این ڈی ایم اے نے شہریوں کو بھی اس حوالے سے خبردار کر دیا ہے، اور مانسون کا جو موجودہ سسٹم ہے 5 اگست تک فعال رہنے کی پیشگوئی کی گئی ہے، یعنی کہ 5 اگست تک مسلسل بارشیں جاری رہیں گی، یہ کہا جا رہا ہے۔ اور اسی تناظر میں جو نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی ہے، ان کے ترجمان کی جانب سے بھی کہا گیا ہے کہ کلاؤڈ برسٹ کم وقت میں زیادہ نقصان کر سکتے ہیں، کیونکہ عمومی طور پر پچھلے سال بھی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو زیادہ تر خطرات ہوتے رہے، جو زیادہ تر واقعات ہوتے رہے اور جو زیادہ تر سیلابی کیفیت ابھرتی رہی ہے، وہ کلاؤڈ برسٹ کے نتیجے میں ابھرتی رہی ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے دیکھا ہے کہ ڈیمز میں پانی بھر جانا، بالخصوص اب سے کچھ دیر پہلے جیسے کہ ہم نے اپنے ناظرین کو بتایا کہ سلال ڈیم میں بھی جو بھارتی آبی جاریت ہے وہ بھی کیسے اس پہلو کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ کچھ اہم ڈائمنشنز ہیں۔ اسی پر بات کرنے کے لیے نمائندہ سما علینا شاہد نے ایک خصوصی انٹرویو کیا ہے، ان سے مزید بات کر لیتے ہیں۔ بتائیے گا علینا، اوور ٹو یو۔ ملک میں اس وقت سیلابی صورتحال ہے اور محکمہ موسمیات کی جانب سے مزید مونسون بارشوں کی پیشگوئی بھی کر دی گئی ہے۔ این ڈی ایم اے کی جانب سے الرٹ جاری کیے گئے ہیں۔ اس وقت مجموعی طور پر کیا صورتحال ہے؟ این ڈی ایم اے کی ترجمان زارا حسن ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ یہ بتائیے گا کہ کیا صورتحال ہے اور سب سے زیادہ کن صوبوں کو، کن اضلاع کو خطرہ پہنچنے کے چانسز ہیں؟ یہ جو ابھی کرنٹ سپیل جو پاکستان میں داخل ہوا ہے، یہ 29 جولائی کو داخل ہوا ہے اور یہ بے آف بنگال سے ہی انٹر ہوا ہے۔ اس کا جو امپیکٹ ہے اور اس کی جو شدت ہے وہ نردن یعنی کہ شمالی مقامات پر، اور جو سینٹرل پارٹ آف دا کنٹری ہے اس میں اس کی شدت زیادہ رہے گی۔ اب یہ جاری رہے گا 5 اگست تک، اور جیسے جیسے یہ ڈاؤن ورڈ ساؤتھ کی طرف موو کرے گا، یہ اپنی اس کی شدت میں کمی آ جائے گی۔ اب اگر پرٹیکلی اور اسپیسیفائی کیا جائے ایریاز کو، تو گلگت بلتستان میں غزر جو ڈسٹرکٹ ہے، گلگت ڈسٹرکٹ، ہنزا ڈسٹرکٹ، جتنے بھی ڈسٹرکٹ جو کہ بیشتر علاقوں میں جو گلگت کے مقامات ہیں وہاں پہ بارش ہوگی، لیکن اس کی وجہ سے جو دریا جانی کے دریائے ہنزا، دریائے شگر، دریائے شوک، یہ تمام وہ دریا ہیں جہاں پر لوکل سٹریمز جو ہیں وہ بھی انڈیٹیٹ ہوگی، جن میں طغیانی کا امکان ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو آزاد جموں کشمیر ہے وہاں پر بھی مظفر آباد، نیلم، اٹھ مقام، پونچھ، بھمبر، راولا کوٹ، یہ تمام مقامات وہاں پر بھی جتنے بھی دریا اور لوکل سٹریمز ہیں، جس میں دریائے پونچھ، دریائے نیلم، بھمبر کے جو مقامات ہیں وہاں پہ بھی لوکل سٹریم جو ہیں وہ انڈیٹیٹ ہوگی۔ اسی طرح شمالی مقامات میں خیبر پختونخوا میں پنچکورہ کی، سوات کی اور کابل کی اصل میں جتنی بھی ٹریبیوٹریز ہیں وہ بھی اس کی وجہ سے انڈیٹیٹ ہوگی۔ اس کے علاوہ جو ہل ٹورنٹس ہیں بنیر، باجر اور مومن کی، وہ بھی ایکٹیو۔ سو ڈاؤن ٹورڈ ڈی آئی اسماعیل خان جتنے بھی ہل ٹورنٹس ہیں وہ بھی اس سسٹم کی وجہ سے ایکٹیویٹ ہوں گے۔ اور سب سے امپورٹنٹلی پنجاب میں اگر دیکھیں تو یہ جیسے کہ ایسٹ کی طرف سے یہ سسٹم انٹر ہوا ہے، تو پنجاب از آلسو آن دا تھریٹ، پرٹیکلی جو ڈسٹرکٹس ہیں جس میں نارووال، سیالکوٹ، گجرات، گجرانوالا، چکوال، جہلم، راول پنڈی، اسلام آباد ٹل ٹورڈز دا فیصل آباد جو سینٹرل پارٹ تک ہے، وہاں پر بھی جو نلاز ہیں، فلیش فلڈنگ پلس جو کہ ایک بہت بڑا میجر ایشو ہے پنجاب میں، دیٹ از اربن فلڈنگ، اس کے بھی چانسز ہیں۔ میں خاص طور پہ نارووال، مرید کے اور سیالکوٹ کا ڈسٹرکٹ کا ذکر اس لیے کروں گی، وہاں کے جو نلاز ہیں جس میں ایک، دیگ، بین، بسنتر جو کہ پیر پنجال ریس سے اوریجنیٹ ہوتے ہیں، جس میں جموں اور منور طوی شامل ہیں، ان میں بھی انڈیشن کے چانسز ہیں۔ تو یہ جو نردرن اور جو سینٹرل بیلٹ ہے جو ٹل 4 اور 5 اگست جو ہے، اس میں جو ہے وہ سسٹم سٹرونگ ہوگا، انڈیشن ہوگی، اینڈ وین اٹ کمز ڈاؤن ٹورڈز دی سردرن سائڈ، تو جو کچھ جو آپ کے ہل ٹورنٹس بلوچستان میں جو ہیں، جس میں اگر ناری ریور کو دیکھا جائے اور کرتھر رینج کے ارد گرد جتنے بھی ہل ٹورنٹس ہیں، چاہے وہ سبی کے ہوں، موسیٰ کیل کے ہو، جل مگزی
सब्ज़ी के हों, ज़ोब रिवर हो, इनमें भी हिल टॉरेंट जो है वो एक्टिवेट होंगे। अल्टीमेटली डीजी खान और राजनपुर के हिल टॉरेंट्स, एंड देन द अपर पार्ट ऑफ दिस सिंध प्रोविंस, जिसमें सखर, जमशोरो, देयर द कंप्लीट लिस्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स जो कि आपको हमारी मोबाइल ऐप में भी जो है इसकी डिटेल्स जो है वो मिलेंगी। एनडीएमए को जो ये अलर्ट्स मौसूल होते हैं, क्या ये कई घंटों पहले मौसूल होते हैं या कई दिन पहले? एक तो हम पूरे साल की प्रोजेक्शन देते हैं, यानी कि जनवरी से लेके दिसंबर तक 12 महीनों की, वो हमारी लॉन्ग रेंज प्रोजेक्शंस होती हैं। और उसके लिए हमने डिफरेंट लेंसेज भी बनाए हुए हैं, पाकिस्तान लेंस 2026 और ग्लोबल लेंस 2026। उसमें ये तमाम मल्टाई हैजर्ड पे जो है उनकी प्रोजेक्शंस होती हैं। सेकंड टियर डिज़ास्टर अर्ली वार्निंग है। मॉनसून के हवाले से हमारी डिज़ास्टर वार्निंग 3 इशू है। हम साल में 4 ड्यू इशू करते हैं और हर ड्यू जो है वो 3 महीनों पे मुश्तमिल होती है। उस ड्यू में वो जो लॉन्ग रेंज प्रोजेक्शंस होती है उसमें पर्टिकुलरली उस महीने में जो डिज़ास्टर, जो हैजर्ड, इम्पैक्ट बेस्ड जो डिज़ास्टर्स होते हैं, जो फॉरकास्टिंग होती है, प्रोजेक्शंस होती है, उसके हवाले से डिटेल मौजूद होती है। जो लास्ट फेज़ है प्रोएक्टिव की, दैट इज़ अलर्ट। जैसे जैसे हम क्लोज टू एनी डिज़ास्टर होते हैं या हैजर्ड होते हैं, देन हम कंफर्मेटरी अलर्ट्स इशू करते हैं। जैसे कि अभी हम 26 में हैं तो हमने 2027 की तैयारी जो है वो स्टार्ट कर ली है। जो हमारी थर्ड फेज़ है इस पूरे टियर की प्रोएक्टिव मॉडल की, दैट इज़ दी इशूइंग द अलर्ट्स, जिसको हम कंफर्म करते हैं व्हेन वी आर क्लोज टू एनी डिज़ास्टर और हैजर्ड। हम इसको 3 से 4 दिन पहले जो हैं वो अपनी मोबाइल ऐप में, हमारे जो मुख्तलिफ ज़राए सोशल मीडिया के, प्रिंट मीडिया के, उसमें लगातार शेयर करते हैं। जो नशेबी इलाकों के शहरी हैं उन्हें क्या हिदायत दी जाती हैं ऐसी सूरत हाल में? इसी मोबाइल ऐप में जो हम अलर्ट्स इशू करते हैं उसमें तमाम उनको क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स लेनी चाहिए, उस हवाले से उसकी डिटेल मौजूद होती है। जो लो लाइंग एरियाज में लोग रह रहे हैं, इनको इन प्रोजेक्शंस का जो है या फिर इनके जो मुतलका अदारे हैं वो अभी नहीं बताया गया। एनडीएमए का एक बहुत ही रोबस्ट और प्रोएक्टिव रोल है डिज़ास्टर मैनेजमेंट में, जो कि पर्टिकुलरली नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सूरत की हमारे सामने है, जिसमें हम लोग सिर्फ यहाँ बैठ के जो है प्रोजेक्शंस नहीं करके, बल्कि हमारा जो राब्ता है हमारे सूबों के साथ, जो भी हमारे लाइन डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे वो FW हो, चाहे वो NHA हो, चाहे वो हेल्थ डिपार्टमेंट्स हो, एजुकेशंस के हो, उन सब के साथ भी ये प्रोजेक्शन जो हैं वो मॉनसून के आने से पहले शेयर कर दी गई हैं। और अच्छी बात यह है कि उनकी पूरी जो मैपिंग है, जो स्टॉक की तैयारी है, जो लॉजिस्टिक की तैयारी है, उसकी रिफ्लेक्शन भी एनडीएमए के साथ शेयर की जाती है। तो ये हमारी जो तैयारी है ये डेली इस पे अपडेट ली जाती है। क्या हिफाजती इक़दामात सूबाई इदारों की जानिब से और एनडीएमए की जानिब से की जा रहे हैं? मॉनसून का स्पेल जो भी हमने देखे हैं अभी तक के, जो 25 दिन में हमने देखे, इसमें जो मेजर इंसिडेंट हुए वो ज़्यादातर कच्ची इमारतों के गिरने से हुए। इसमें 75 जो केसेस हैं वो इमारतों के गिरने से हुए और जो 25% है वो ड्रोनिंग के केसेस हुए। यानी कि इसमें तैयारियां जो थी सूबों की या फिर डिस्ट्रिक्ट्स की वो बहुत बेहतर थी एज़ कम्पेयर टू पिछले साल। लास्ट टाइम आपके पास स्पेल्स आए बारिशों की, कुछ और जो है वो लूप होल से, जिनकी वजह से हमारे पास काफ़ी अमवात हुई। चूँकि अभी भी अमवात का नंबर कम नहीं है, लेकिन अभी तक की जो ज़्यादा अमवात हुई है वो पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से हुई है। हमारा एक इंफ्रास्ट्रक्चर का विंग है, उन्होंने पूरे मुल्क के नॉर्थ से साउथ तक हैजर्ड वाइज टेम्पलेट्स बनाए हुए इंफ्रास्ट्रक्चर के, तो वो भी शेयर किए गए और अभी वो उसके ऑडिट की भी तैयारी कर रहे हैं, जो कि हम सूबों के साथ मिलके कर रहे हैं। सबसे अच्छी बात ये एक होलिस्टिक अप्रोच है और ये पीएम की हदायत के मुताबिक जो है हम ERC जो करा रहे हैं उसमें डेली अपडेट ली जा रही है और हर बंदा उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है। जो इस दफ़ा सैलाबी सूरत हाल है, क्या गुज़श्ता सालों में जो तबाही हुई है इस दफ़ा उससे ज़्यादा तबाही होने के चांसेस हैं? इस साल का जो मॉनसून है ये पिछले सालों की निस्बत इसलिए डिफरेंट है कि इसमें कुछ क्लाइमेटिक वेरिएशंस, जिसमें आपने सुना भी होगा एल नीनो, इसमें बारिशें जितनी पिछले सालों में रिकॉर्ड की गई या 2022 में 25 में, उसमें लानीना था जिसकी वजह से बारिशें ज़्यादा होती हैं मॉनसून में। इस साल बारिशें एज सच उतनी इंटेंसिटी की नहीं है जो पिछले साल रिकॉर्ड की गई हैं। डेफिसिट है बारिशों में इस साल। एल नीनो पैटर्न की वजह से जो भी इंसिडेंट होते हैं वो बर्स्ट की सूरत में बरसते हैं, यानी कि आपके पास कन्वेक्टिव रेन्स होती हैं। तो इस साल जो भी इवेंट्स हैं वो मॉनसून बर्स्ट की सूरत में बरस रहे हैं। दो कि इनकी इंटेंसिटी जो है वो पिछले सालों की निस्बत कम है, लेकिन ये इंसिडेंट जो हैं ये ज़्यादा तबाही का बाइस भी बनते हैं। जैसा कि आपने सुना कि सूबाई इदारे भी और एनडीएमए की जानिब से भी तैयारियां तो मुकम्मल की गई हैं और तमाम मुतल्लिका इदारों को भी हाई अलर्ट कर दिया गया है ताकि किसी किस्म की परेशानी की सूरत हाल से बचा जा सके।
ठीक है अलीना, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं। कंक्रीट का जंगल बढ़ता जा रहा है और सब्जा खत्म होता जा रहा है। पाकिस्तान बदतरीन मौसमियाती तब्दीली का शिकार है, लेकिन इससे निपटने के लिए कोई मौसर पॉलिसी नहीं बनाई जा सकी। गर्मी की शिद्दत बढ़ती जा रही है, ग्लेशियर्स तेजी से पिघल रहे हैं, जबकि गुज़िश्ता साल से सैलाब की तबाही ने जो कुछ किया था इंतजामिया कुछ ना सीख सकी उससे। और इस बार भी पंजाब में हजारों लोग बेघर हो चुके हैं, ज़रूरी ज़मीनें तबाह हो रही हैं, फसलों को नुकसान पहुंच रहा है। और इसी पर मुख्तलिफ शहरों में हमारे नुमाइंदगान मौजूद हैं, उनसे सैलाब की ताज़ा तरीन सूरत हाल जान लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं सामिया सईद से। सामिया, ये बताइएगा कि फिरोजवाला में आप डे 1 से फ्लड की कवरेज कर रही हैं, क्या मजमूई तौर पर सूरत हाल है और कितनी तबाही हो चुकी है, नुकसान कितना हो चुका है लोगों का, और साथ ही हुकूमत और इंतजामिया का क्या रिस्पॉन्स है? जी बिल्कुल सोबिया, सबसे पहले मैं यहाँ से बात शुरू करना चाहूँगी कि गुज़िश्ता साल भी हमने तारीख़ी सैलाब को कवर किया और भरपूर कवर किया, जिसमें हमने डिफरेंट साइट्स को भी, दरियाए चनाब की जो मुख्तलिफ साइट्स है, दरियाए सतलुज, दरियाए रावी की साइट्स, उनको हमने कवर किया। तो गुज़िश्ता साल तो एक तारीख़ी सैलाब था जिसमें पंजाब के तीनों दरिया बिखरे थे और हम कह सकते थे कि बहुत ज़्यादा लोड था और बहुत ज़्यादा मैनेजमेंट की ज़रूरत थी। और अगर बजट की बात करें तो वैसे इस साल जो बजट है और जो गुज़िश्ता साल भी PDMA को बजट मिला वो 100 अरब रुपए का बजट जो है वो मिला, लेकिन क्योंकि पिछले साल सैलाबी सूरत हाल इस तरह थी कि ये बजट जो है वो 400 अरब से 500 अरब तक चला गया। लेकिन इस साल हम देखते हैं कि बजट 100 अरब तक ही मुख्तस किया गया है अभी तक। और अगर मेरे अकब में भी आप देखें तो यहाँ पर तबाहकारियाँ देखें अगर सैलाब की, तो पाकिस्तान इस वक्त मौसमियाती तब्दीलियों से दो चार है, लेकिन हम अपने माजी से कुछ भी नहीं सीखते। गुज़िश्ता साल की निस्बत इस साल की मैनेजमेंट बेहतर होनी चाहिए थी, अच्छी होनी चाहिए थी, वेल प्लान्ड होनी चाहिए थी, जबकि इस साल उस तरह से बारिशों का सिलसिला भी नहीं रहा, उस तरह से पंजाब के दरिया बिखरे भी नहीं। लेकिन फिर भी हम देख सकते हैं कि एक साइड जो कि ये तहसील फिरोजवाला है ज़िला शेखुपुरा की, तो उसको भी हैंडल नहीं किया जा सका। यहाँ पर लोगों को अलार्म भी नहीं किया जा सका, यानी चंद घंटे पहले भी अलार्म भी नहीं किया जा सका, इसीलिए नुकसान भी ज्यादा हुआ है। बेयारो मददगार लोग वहाँ पर मौजूद हैं, समा की टीम पहुंची है, मुसलसल इस हवाले से रोजाना की बुनियाद पर अपडेट कर रही है। सामने साथ ही मौजूद रहिएगा। यासर हकीम, आपकी जानिब बढ़ते हैं। चूंकि जुड़वा शहरों में बारिश के बाद नशीबी इलाकों में बहुत ज़्यादा पानी जमा था, तो बताइएगा कि क्या वो निकासी अब हो गई है वहाँ से, और जैसे कि मिस्ट्रियाल रोड पर नाले में डूबने वाले बच्चे की लाश के हवाले से भी आपके पास क्या अपडेट है, वो भी ज़रा बताइए। देखिए, गुज़िश्ता रोज़ सावन की घटाएं बरसी थी और उन्होंने बरसने के साथ ही जो इंतजामिया की तैयारियां थी उनका पोल खोल दिया था। तकरीबन 55 मिलीमीटर के लगभग बारिश हुई थी और उस बारिश के साथ ही नाला लई में सैलाब आया और 9 फुट तक नाला लई में पानी की सतह बुलंद हुई, जिसका बायस नशेबी इलाके जितने थे नाला लई के तरफ वहाँ पर पानी दाखिल हुआ और पानी ठहर गया। लेकिन नाला लई बारिश रुकने के बाद नाला लई में पानी की सतह मामूल पर आई, तो उसके साथ ही नशेबी इलाकों से भी आस्ता आस्ता पानी अब निकल चुका है। गुज़िश्ता रोज़ बरसाती नाले के करीब खेलते हुए एक बच्चा 7 साल का फ्रेंड्स कॉलोनी से नाले में बह गया था, जिसकी तलाश का ऑपरेशन गुज़िश्ता रोज़ ही शुरू किया था। अब की ताज़ा तरीन इतलात यह है कि थोड़ी देर कबल ग्वाल मंडी के करीब जो मुकामी अफराद थे उन्होंने नाले में उस बच्चे की लाश देख के रेस्क्यू 1122 को उसके इतला दी और अब उस बच्चे की लाश जो है वो नाले से रिकवर की गई है, जिसे ज़रूरी कार्रवाई के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। ज़िली इंतजामिया ने इस मानसून के आगाज़ से कबल बड़े बुलंदोबाग दावे किए थे, वासा ने बड़े इंतजाम के दावे किए थे, लेकिन गुज़िश्ता रोज़ जब बारिश शुरू हुई तो किसी भी जगह कोई इंतजाम नज़र नहीं आए। हम खुद मिलत कॉलोनी में गए, गली में 2-2 फुट तक पानी खड़ा था, लोग नमाज जुमा की अदायगी के लिए मस्जिद तक नहीं पहुंच पा रहे थे। जब हमने ये आवाज़ उठाई तो उसके बाद वासा का अमला और ज़िली इंतजामिया के अफसरान की दौड़े लगी, कोई भी अच्छे इंतजाम देखने को नहीं मिल रहे।